So good morning students. So in today's lecture we are going to discuss a very important another important library which we are going to use in the Python when we are making the machine learning programs. So that which is known as the NumPy. So basically NumPy stands for numerical Python. Fine. So whatever the numerical things we are doing in the Python, we have to use the library which is known as the NumPy. So it is a Python library which is used for working with the arrays. Fine. And it is created by Travis Oliphant in 2005, and it is an open source project, so we can use it freely whenever we want to. So it is an open source project. Fine. Okay. So first of all, I would like to tell you the theoretical part of it. Fine. And after just few minutes, we'll see the programs regarding with the NumPy. And in this lab session I have divided this lab session into two parts. So during this session, in this session we are going to discuss the introductory part of the NumPy, and we'll see the initial programs which we are going to use in the NumPy by using NumPy. And after that we'll be in the next lecture we'll be discussing the NumPy randoms. Fine. So that is also a very important part. So random numbers, how to generate the random numbers, and what are the different distributions which we have to use and which we have to see in the NumPy. Fine. So so let's start with the theoretical part of the NumPy first. So students, firstly it is used for the arrays, and we have already seen that in arrays we are using the list. Fine. So what is the difference between the NumPy and the list? So basically NumPy aims to provide an array object that is up to 50 times faster than the traditional Python list. So it is 50 times faster than the traditional list which we are using it. So the array object in NumPy is called ND array. So whatever the array we are using it is known as ND array. Fine. And it provides a lot of support functions that makes working with ND array very easy. Fine. Arrays are very frequently used in data science, so because the speed and the resources are very important, so we are using the arrays. So now let's see why the NumPy is faster than the list. See students, why NumPy is faster than the list? Because it stores all the variables at one continuous place in the memory. Fine. But in the list we have to access it and we have to manipulate it very efficiently. So that's why we are using it NumPy, and which is that's why the NumPy is faster than the list. So because the process of access and the manipulation is very fast in the case of NumPy. This behavior is also known as the locality of the reference. So we all know there's locality of the reference. Uh, Locality of the reference, we have seen this in the C language also. तो locality of the reference क्या होता है कि जब हम एक ही मेमोरी जब continuously जब मेमोरी हम allocate करते हैं तो it is very easy to access it and very easy to manipulate it effectively. तो that's why तो इसमें भी जो ND arrays हैं और अगर मैं कहूँ NumPy है उसमें भी locality of reference का जो concept है वो यूज़ होता है. Fine. अब बात करते हैं NumPy किस में लिखा हुआ है. तो बेसिकली बट ऑब्वियस है NumPy जो है पाइथन में लिखा है, बट इसकी कुछ जो कंप्यूटेशंस हैं वो सी लैंग्वेज और C++ में भी लिखी गई हैं. तो NumPy जो है दोनों चीज़ों में लिखा गया है. तो यू कैन एक्सेस द कोड, यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ NumPy. आप NumPy डालना और यू कैन गेट द डॉक्यूमेंटेशन रिगार्डिंग इट. ठीक है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. तो सबसे पहले बात हम करेंगे, एक छोटा सा एक प्रोग्राम देते हैं. तो जैसे हमने इंपोर्ट किया था पांडास, ऐसे ही हमें इंपोर्ट करना है NumPy को. तो NumPy इस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है. ठीक है. और पहले मैं आपको एक सिंपल NumPy विदाउट यूजिंग NP यूज़ करके दिखाता हूँ, फिर उसको हम अभी हम NP यूज़ नहीं करेंगे. सो मैंने यहाँ पे एक अरे लिया और मैंने लिखा यहाँ पे NumPy डॉट अरे. सो बेसिकली अरे एक मेथड है NumPy के अंदर, और जो भी मैं अरे यहाँ पे पास करूँगा दैट हैज़ टू बी इन द लिस्ट.
ठीक है, तो मैंने लेट सपोज किया 23, 4, 67, 2.5 एंड 8 प्लस 9 तो आई हैव टेकन ऑल द थिंग्स, और एक मैं इंटीजर भी ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिया 8। सो नाउ आई हैव टू प्रिंट इट। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट लिखना है, प्रिंट ए। तो हियर वी कैन सी दैट दीज आर द अरेज। ठीक है, तो नंपाई जो होगा बहुत फास्ट और इफेक्टिवली इसको शो कर लेगा। तो वी कैन सी दैट वॉट एवर द आइटम्स वी हैव प्लग्ड इन द इनसाइड द लिस्ट, इट इज शोइंग इट इज एज अ आउटपुट। ठीक है, अब हम इसका एक कीवर्ड यूज करेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज, नॉट द कीवर्ड, इसका एक एलियास है। ठीक है, जिसको हम एनपी बोलते हैं। जैसे हमने पांडास में पीडी यूज किया था, ऐसे ही नंपाई में हम नंपाई यूज एनपी यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट नंपाई एज। तो एज बेसिकली मेरा जो है वो कीवर्ड है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इट विल शो एज इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। तो अब जो भी मैं एक्सेस करूंगा चीज़ें, वो कैसे होंगी एक्सेस। तो फिर से मैं इसको ले लेता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नंपाई की जगह एनपी लिखना है, जिससे कि बार बार मेरे को नंपाई पूरा टाइप नहीं करना पड़े। तो अगेन इट विल शो द सेम आउटपुट। तो जस्ट टू मेक यू सी दैट के हम एक एलियास यूज कर रहे हैं एज एनपी, और बाय यूजिंग एन एज कीवर्ड। तो एज बेसिकली इट इज़ अ कीवर्ड यूज इन द पाइथन, और इम्पोर्ट जो होता है वो लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करी है नंपाई, जिसको हमने नाम दिया है एनपी, और इसके थ्रू हम एक एक्सेस कर रहे हैं एक अरे को। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इसका वर्जन देखना है तो उसका भी वही सेम कमांड है जैसे कि हमने उसमें देखा था पांडास में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा np अंडरस्कोर डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन। फाइन। तो अब मैं जब इसको रन करूँगा तो इट विल शो मी द वर्जन। सो यहाँ पे अभी 1.9.5 जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं। फाइन, सो इट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द नंपाई। तो कौन सा हम नंपाई यूज़ कर रहे हैं, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो भी अपन आराम से देख सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द लेट्स डाइव इन द एक्चुअल थिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएट अ नंपाई एनडी अरे ऑब्जेक्ट। तो एक एनडी अरे हम बनाएंगे, किस तरीके से बनाया जाता है एनडी अरे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो नंपाई इज यूज्ड टू वर्क विद द अरेज। द अरे ऑब्जेक्ट इन नंपाई इज कॉल्ड एनडी अरे। एनडी अरे क्या चीज़ होती है, कैसे बनाया जाता है, मैं आपको अभी कुछ ही देर में दिखाऊंगा। So we can create a numpy nd array object by using a array function। तो array function को यूज करके हम nd array जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अब कितने तरह के कितने डायमेंशंस के array होते हैं वो हम देखेंगे। तो अगेन नाउ एवरी टाइम आई डोंट हैव टू इम्पोर्ट द नंपाई। ठीक है, एक बार जैसे ही मैंने कर लिया इस करंट नोटबुक में, अभी करंट सेशन में, अब मुझे दोबारा इसको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप जब इसको बंद कर देंगे एंड अगेन यू लॉग इन एंड विद द कोलैब और विद एनी काइंड ऑफ लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एनाकोंडा और जुपिटर नोटबुक, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जब भी आप दोबारा नोटबुक ओपन करेंगे, प्रीवियस नोटबुक भी होगी, तो आपको दोबारा इम्पोर्ट करनी पड़ेंगी ऑल द फाइल्स, ऑल द लाइब्रेरीज, एंड यू हैव टू अपलोड ऑल द डेटा सेट्स ऑल्सो। ठीक है, .csv फाइल भी अपने को सारी की सारी अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, बट अभी यहाँ पे करंट सेशन चल रहा है, सो देयर इज नो नीड टू अपलोड अगेन। तो अब मुझे सीधे क्या करना है, एक एनडी अरे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे फिर से एक लिया ए एन पी डॉट अरे मैंने यहाँ पे लिया, और बेसिकली ये जो मेरा काम, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया और उसके बाद मैंने लिस्ट ओपन करी है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक 0D अरे है। ठीक है, एक 0 डायमेंशनल अरे है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज 0D अरे।
इसी तरीके से हम 1D अरे भी बना सकते हैं, 2D अरे भी बना सकते हैं, 3D अरे भी बना सकते हैं और ND अरे भी बना सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे 0D अरे की। अगर आपने 0D अरे समझ लिया तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट ओपन किया, उसके बाद एक बिग ब्रैकेट किया है। दैट मीन्स कि एक मेथड है, मेथड के अंदर मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी है, ठीक है। सो इट इज़ अ 0D अरे, और जब मैं इसको रन करूँगा तो मेरे को इस तरीके से ये दिखाएगा, ठीक है। सो दिस अब मेरे को अगर इसका टाइप देखना है कि इस ए का क्या टाइप है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ टाइप बाय यूजिंग टाइप मेथड। ये अपन पहले भी यूज कर चुके हैं। तो टाइप बेसिकली क्या बताएगा आपको कि ये कौन सा टाइप, क्या टाइप है ये। तो ये आपको दिखा रहा है ये क्लास numpy डॉट एनडी अरे है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, एनडी अरे यूज कर रहे हैं, और ये किसका पार्ट है, numpy का है। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि यूज होता है numpy के अंदर। फाइन। सो it is showing that the A is nothing but the ND array. तो जो not it is not a sorry I am sorry it is not a 0D array. Let's see कि क्या क्या चीज़ें होती हैं अरेज के बारे में, जो डायमेंशंस हैं उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी द डायमेंशंस ऑफ एन अरे। फाइन। तो सबसे पहले अपन एक देखते हैं, ए इक्वल्स टू np डॉट अरे, और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू दी, लेट्स सपोज 4, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट किया ए को। तो यहाँ पे जो ये 4 दिख रहा है, इट इज नथिंग बट अ 0D अरे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, कोई लिस्ट नहीं लिया, सीधे एक पैरेंथेसिस स्मॉल, नॉट द पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर मैंने एक वैल्यू पास कर दी। सो बेसिकली इट इज अ 0D 0 डायमेंशन अरे, ठीक है। तो 0 डायमेंशन अरे है, और इसको हम स्केलर्स भी बोल सकते हैं, इसको हम, और वी कैन ऑल्सो नोन एज स्केलर्स, ठीक है। तो ईच वैल्यू इन एन अरे इज अ 0D अरे। तो जो भी मैं इसके अंदर पास करूंगा वैल्यू, तो वो 0D अरे की होगी। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरी चीज पास करता हूँ, लेट्स सपोज दिस लाइक दिस, इट विल शो मी एन एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सिंगल वैल्यू ही करनी है, बिकॉज टेक्स 1 और 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 आर गिवन, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये करना है तो ए बी एंड सी, और उसके बाद मुझे यहाँ भी ए बी एंड सी करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। हियर आल्सो गेटिंग द सेम एरर, ठीक है। एनीवेज, तो हम लोगों को सिर्फ एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू इनपुट करानी होगी, तभी ये चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ 0D अरे, आई थिंक। तो ये बेसिकली 0D अरे है, तो हमें यहाँ पे 0D अरे ही फॉलो करना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी कैन रन द प्रोग्राम। नाउ लेट्स सी 1D अरे। तो 1D अरे जो होता है, 1D अरे जो अभी हमने देखा वो 1D अरे है। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, np डॉट अरे